اقبال نے بڑا اعتراض کیا اس بات پہ۔ اقبال فرماتے ہیں کہ غلام کی کوئی زندگی نہیں ہوتی، اس کی کوئی مرضی نہیں ہوتی، اپنی مرضی سے کہیں جا نہیں سکتا، آ نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، سو غلام جو ہوا بیچارہ۔ لیکن اقبال فرماتے ہیں یہ جو بے یقین بندہ ہوتا ہے یہ غلام سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا نظریہ ہی کوئی نہیں، اس کا کوئی اعتقاد ہی نہیں، سویرے کچھ سوچتا ہے، شام کو کچھ سوچتا ہے۔ اقبال کہنے لگے کہ سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے تیری بے یقینی۔ اپنے اندر یقین کامل کی دولت پیدا کریں۔ حق وہ ہے جو میرے رب نے فرما دیا، حق وہ ہے جو مدینے والے رسول لے کے تشریف لے آئے، اس پر اپنا یقین مضبوط کریں۔ امام غزالی نے حدیث لکھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقین اس طرح سیکھا کرو جس طرح تم قرآن سیکھتے ہو۔ یہ چھوڑ دیں آپ کچے پکے ارادے۔ وہ ہمارے ہاں تو لوگ شاگرد ہو کے بھی شاگرد نہیں ہوتے، مرید ہو کے بھی مرید نہیں ہوتے۔ ان بیچاروں کو نا اکثر خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں میں صحیح جگہ ہوا ہوں کہ نہیں ہوا، ہر وقت کچے پکے رہتے ہیں۔ کچا پکا بندہ کچھ نہیں کر سکتا جس کا ارادہ ہی کوئی نہیں۔ ارادے کے بعد عمل آئے گا نا۔ تو ہمارے ہاں یقین کی اتنی کمزوری ہے، جن لوگوں کو کمزوری ہے نا یقین کی، یہ نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں۔ آپ کی مہربانی جی، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ مجھے پورے 50 مل گئے ہیں، میرے لیے کافی ہیں۔ اب نہ اٹھے کوئی بندہ پیسے لے کے۔ پیسے لینے کے لیے آتا تو پیچھے سے سودا کر کے آتا، تو بغیر سودے کے آیا ہوں، اس کا مطلب ہے پیسے لینے نہیں آیا، کچھ اور لینے آیا ہوں۔ آپ مہربانی فرمائیں، آپ مہربانی کریں۔ ہم تو فاضل بریلوی کے غلام ہیں، اور ہمارے امام نے ہمیں یہ کہا ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تو ہمارا ریٹ بہت زیادہ ہے، پتہ کون سا؟ جب کوئی مسکرا کے کہتا ہے نا مدینے والے کا ذکر سننا ہے، تو یہی تو ہمارا ریٹ ہے، یہ ہمارا ریٹ ہے۔ بس یہ دیتے رہیں، کام چلتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اللہ، آپ نے تحفہ دیا، میں نے قبول کر لیا ہے، لیکن بس ذرا میں سمجھتا ہوں کہ بچا جائے جتنا اتنا زیادہ ہی اچھا ہے۔ ویسے بھی پیسوں شیسوں سے آپ نے خود ہی بچنا ہے، یہ جتنے زیادہ آتے جاتے ہیں ضرورتیں بھی اتنی بڑھتی جاتی ہیں۔ پیسے بڑھ جائیں تو ضرورتیں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ اگر پیسے نہ ہوں تو بندہ نئی گاڑی کا نام نہیں لیتا، اور اگر تھوڑے زیادہ ہوں تو پھر پوچھتا ہے اے کنے دیے بلا، تو وہ چکر ہی تب پڑتا ہے جب۔ تو آپ میری بات پہ توجہ کریں گے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اپنی زندگی میں یقین کو کچا نہیں کرنا۔ خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص نے آ کے کہا حضور میں نے آپ کا مرید ہونا ہے، میں فلانے آدمی کا مرید تھا، میں نے آپ کا ہونا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے وہاں کیا ہوا؟ کہنے لگا جی وہ کامل ہی نہیں۔ فرمانے لگے تجھے کیسے پتہ چلا ہے؟ یہ تو کوئی کامل ہی بتا سکتا ہے کہ کامل ہے کہ نہیں، تجھے کیسے پتہ چلا ہے؟ کہنے لگا جی آپ فرمانے لگے کوئی شرعی قباحت ہے تو بتا، ورنہ تو رب کے رضا کے لیے اسی کی خدمت کر، اللہ اپنے کرم سے تجھے فیض عطا فرما دے۔ کچا پکا یقین نہیں پیدا کریں، پکا یقین کامل۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نا تکلیف ہو گئی، منہ کے اندر کچھ آپ کے زخم بن گئے، چھالے بن گئے، تو ایک طبیب آیا تو کہنے لگا آپ کو طاعون کی بیماری لگ گئی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے بولا بھی نہیں جا رہا تھا، تکلیف تھی۔ فرمانے لگے سارا کچھ ہو سکتا ہے، فقیر کو طاعون نہیں ہو سکتا۔ کہا جی کیوں؟ فرمانے لگے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی ہے، فرمایا کسی بیمار کو دیکھ کے پڑھ لو، تم کبھی بیمار نہیں ہوگے، وہ بیماری تمہیں نہیں کبھی لگے گی۔ فرمایا میں نے طاعون والے مریض کو دیکھ کے پڑھ لی تھی، تو مجھے کیسے وہ بیماری لگ سکتی ہے؟ میں نے پڑھ لی تھی دعا۔ وہ صاحب کہنے لگے جی میرا علم کہتا ہے آپ کو طاعون ہے۔ فرمانے لگے تیرا علم جھوٹ بولتا ہے، مدینے والے کی حدیث سچ کہتی ہے، حضور کا فرمان سچا ہے، تو جو تیرا طب کا علم ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ نبی کی جو بات ہوتی ہے وہ بدلہ نہیں کرتی، نبی کی بات بدلہ وہ ایک رہتی ہے۔ تو یقین پیدا کریں، یقین۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، آپ لوگ بیٹھ جائیں جی سارے حضرات جہاں جائیں، میں تو ویڈیو کا بھی اتنا شوقین نہیں ہوں، یہ تو قدرتی بننے لگ گئی ہیں۔
ورنہ میں تو ان بزرگوں کا ماننے والا ہوں جو منع کرتے ہیں ان چیزوں سے. تو آپ ہمارے اتنے پوز نہ لیں کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے. ہم جو ہیں وہ سب کے سامنے ہی ہیں. آپ تو مہربانی کریں. آپ ٹھیک ہے بیٹھ جائیں حضرات. میں یہ موبائلوں میں تو ویسے بھی آپ مجھے دیکھتے ہی رہتے ہیں. اب تو میں آیا بیٹھا ہوں نا آپ کے سامنے, تو میرا دل ہے موبائل چھوڑ کے مجھے دیکھیں. اللہ آپ کو خوش رکھے. توجہ کریں میری بات پہ. ڈاکٹر کے پاس جب آپ جاتے ہیں, آپ نے کہا جناب میں فلانی تکلیف میں مبتلا ہوں, نسخہ لکھ دیا. پھر آپ ہفتے کے بعد گئے, ڈاکٹر صاحب کوئی فرق نہیں پڑا. تو ڈاکٹر کہتے ہیں میں نے دوائی بدل دی ہے. پھر آپ گئے, ڈاکٹر صاحب فرق نہیں پڑا. تو وہ کہنے لگا کہ اس شعبے کا فلانی جگہ اسپیشلسٹ بیٹھتا ہے, وہاں چلے جاؤ. ڈاکٹر یہ کام کہتے ہیں, لیکن نبی پاک علیہ السلام ایسا نہیں فرماتے. صحابی نے آ کے عرض کی حضور میرے بھائی کو پیچس لگ گئے, دست آ رہے ہیں. فرمایا جا شہد پلا. اور پھر آ گیا اگلے دن, حضور وہ تو زیادہ ہو گئے. نسخہ نہیں بدلا, فرمایا جا شہد پلا جا کے. وہ تیسرے دن پھر آیا, عرض کی سونیا وہ تو زیادہ ہو گئے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بولتا ہے اور اللہ کا رسول سچ کہتا ہے, جا جا کے شہد پلا. وہ کہتے ہیں قربان جائیں, تیسری دفعہ پلایا تو رب نے شفا عطا فرما دی. تو آپ یقین تو پیدا کریں نا, یقین کامل. آپ کامل یقین پیدا کریں, اور یقین کامل بڑا مزیدار ہوتا ہے. آپ کو اگر لگ جائے نا, ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل نا بیچاری چونکہ ساری کہانیاں سنتی ہے تو یقین کی دولت سے محروم ہے. یقین کریں, اور ہر چمکتی چیز کے پیچھے چل پڑتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ سونا ہی ہوگی. ہمیں تو کبھی سونا نہیں نظر آیا, جتنا سونا نظر آیا بریلی شریف میں ہی نظر آیا. آپ پتہ نہیں دائیں بائیں کہاں سے سونا ڈھونڈتے پھرتے ہیں. میرے ابا جی کسان تھے, کسان. میں ممبر پہ اور مسجد میں اور باوضو بیٹھا ہوں, میرے دل میں کبھی خیال نہیں آیا کہ میں ان کا بیٹا نہ ہوتا, کسی مفتی پیر کا ہوتا. اس لیے کہ میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کے ہاتھوں میں چھالے رہے, لیکن جتنا کمایا رزق حلال ہی کمایا. اب میری اماں انگوٹھا چھاپتی, وہ کچھ لکھ نہیں سکتی تھیں, لیکن مجھے اگر آپ کہیں تو میں 4 جلدوں میں کتاب لکھ سکتا ہوں اپنی اماں پہ. اس لیے کہ جو بی بی کسی کی بیٹی کا دکھ سن کے ساری رات روتی رہے, تو بتائیں رب کریم نے کتنا ٹھنڈا دل عطا فرمایا ہے. تو میں کہتا ہوں دنیا میں جتنے اچھے استاد مجھے ملے شاید کسی کو ملے ہوں. دنیا میں میرے زمانے میں جتنے اچھے ماں باپ ملے مجھے شاید کسی کو ملے ہوں, اور جتنے اچھے مرشد مجھے ملے شاید کسی کو ملے ہوں. آپ یقین کی دولت تو پیدا کریں. آپ کہیں ٹھہرنا تو سیکھیں. اور استقامت کی تعریف یہ نہیں کہ استقامت آئے گی تو آپ رکیں گے, نہ. استقامت کی تعریف یہ ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. اللہ فرماتے ہیں تو کیا ہے, اللہ میرا رب ہے, پھر تو ڈٹ. جب تو ڈٹے گا پھر رب تیری مدد کے لیے فرشتے نازل کرے گا. یعنی یہ نہیں کہ اللہ فرشتے نازل کرے گا تو ڈٹنا ہے, ڈٹنا پہلے ہے. یہاں علماء بیٹھے ہیں, ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, پہلے ڈٹنا ہے, فرشتے بعد میں آئیں گے. لیکن ہم کہتے ہیں فرشتے آئیں گے تو ہم ڈٹیں گے. ایسا نہیں ہوتا, ہم ڈٹیں گے تو فرشتے آئیں گے. اپنی زندگی میں کامل یقین پیدا کرو. یہ کچی پکی باتیں چھوڑ دو. آپ کو ایک دیسی بات نہ بتاؤں, اے باہر والے بھی ساڑھے نال ہو کے بس اندر آ لئی ہو. اللہ تو ان خوش رکھے, اللہ برکت دے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری برکتوں سے نوازے. یہ حضرت شیخ الحدیث کا فیضان ہے نا کہ زور کے بعد جلسے, اور ماشاءاللہ اتنے زیادہ لوگ یہاں جمع ہو گئے. یہ ہمارے بزرگوں کی نسبتوں کی برکت ہیں. ایک دیسی بات بتاتا ہوں. میں ایک دفعہ بس میں بیٹھا تھا, تو 2-3 سیٹیں چھوڑ کے نا ایک مولوی صاحب نا ایک سنی بیچارے کو نا بڑی سخت تلقین کر رہے تھے, اور بڑے دلائل پتہ نہیں کہاں سے بیچارہ اکٹھے کر کے لا رہا تھا. اسے نا معاذ اللہ کہہ رہا تھا یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے. یہ اس کو سبق پڑھا رہا تھا, اور اس نے بڑا پڑھایا. اب وہ رش بڑا تھا بس میں, تو جہاں سے گزرنا تھا وہاں بھی لوگ کھڑے تھے. تو میں بڑا اتاولا ہو رہا تھا کہ اب میرا کسی طریقے سے ہاتھ پہنچے تو میں بھی ذرا اس تک پہنچوں. پھر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ رش زیادہ, یہ لوگ ذرا اتر جائیں بیچ میں سے, تو آگے جا کے نا تو میں اس سے کہتا ہوں کہ یار تم کیوں فرقہ واریت کی باتیں کر رہا ہے. لیکن وہ باتیں کیے جا رہا تھا. اچھا پھر میں نے دوسرا یہ ارادہ کر لیا کہ اس کی ساری کہانی سنوں, پھر ایک ایک بات کا نا اپنی بساط کے مطابق جواب دوں گا.
اچھا اللہ کی قدرت ایسی کہ سٹاپ آ گیا اگلا، تو سٹاپ آیا تو وہ لوگ اترنے لگے، تو جس کو وہ سمجھا رہا تھا نا بڑی دیر سے، وہ بندہ کھڑا ہو گیا، اس کا سٹاپ آ گیا۔ آپ یقین کریں میں بڑی تکلیف میں آ گیا، میں نے کہا اس نے تو اس کا ذہن خراب کر دی ہے، اور میں انتظار میں رہا کہ لوگ اتریں گے تو سمجھاؤں گا، تو یہ بندہ تو اتر رہا ہے۔ لیکن یقین کریں وہ لوگ بڑے مزیدار تھے، مکان کچے عقیدے پکے۔ اب تو یہ کہانیاں ہیں، اس کی بھی سنو تو اس کی بھی سنو تو فلانے کی بھی سنو، تو یہ سوال تو وہ سوال، لیکن مکان کچے عقیدے پکے، یقین کامل، کچا پکا نہیں، پکا پیٹا۔ وہ بندہ اٹھا اترنے لگا نا، تو میں ڈسٹرب ہو گیا کہ اب یہ بیچارہ اسی طرح اپنے ذہن میں وسوسے لے کے اتر جائے گا، لیکن اترتے اس نے رومال کندھے پہ رکھا، کہنے لگا مولوی صاحب کنا چر لایا جے مینوں سمجھاتے؟ وہ کہندا سوا گھنٹہ، کہندا تسی گھنٹہ اور بھی لاندے نا تے گل اوتھے ہی رہنی سی۔ اور نیچے اترتے وقت کہنے لگا یا رسول اللہ مدد۔ یعنی اس نے اتنا ٹائم لگایا، لیکن وہ جہاں تھا وہی او نا علماں وچ پھسا سانو، تو یار دی گل سنا سان۔ میرے رسول پاک علیہ السلام کو جلال آتا تھا۔ کن کن باتوں پہ آج کچھ باتیں کرنی ہیں جن باتوں سے حضور ناراض ہو جاتے ہیں۔ ایک تو کافر مشرک کی بات ہے کہ میں نے حدیث سے تفسیر عرض کی کہ نافرمان پر اگرچہ وہ محبوب ہے، حضور کے غلام ہیں، پر نافرمانی کرتے تو اللہ کے نبی ناراض ہو جاتے ہیں۔ مشکاہ شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں صحابہ بیٹھ کے تقدیر پر بحث کر رہے تھے۔ کون؟ ہماری طرح کے ان پڑھ بندے نہیں جس پھٹے پہ بیٹھتے ہیں دین میں بات کرتے ہیں، جس چوک پہ بیٹھتے ہیں اپنی اور 5-7 مسئلے سب نے یاد کیے، کہتے ہیں مولویوں کی پتہ ہے، ان کو کیا خبر ہوئی، ان کو کیا پتہ ہوتا ہے۔ مجھ سے سنو، سب سے بڑا مفتی تو میں ہوں، شیخ القرآن کی 2-4 ڈگریاں اس جیب میں اور شیخ الحدیث کی اس جیب میں ہے۔ مولوی بیچارے کو کیا پتا، وہ تو روٹی کھاتا رہا ہے 8 سال مدرسے میں، اس کو کیا خبر۔ اپنی مرضی کا مسئلہ، اپنی مرضی کا فتویٰ۔ اب لوگ علماء کے پاس بھی جب آتے ہیں تو رائے لینے نہیں آتے، رائے دینے آتے ہیں۔ 2-4 بندہ رائے دے جاتا ہے، کہتا ہے جناب اس طرح کہا کریں لوگ جب آپ کے پاس آتے ہیں، بلکہ لوگ ہمیں بتاتے ہیں یہ باتیں سنایا کریں، وہ بڑی بات نہ بیان کیا کریں۔ میرے بھائی سنیں، نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے مسجد نبوی میں، تو صحابہ تقدیر پر بحث کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے محبوب آئے، حضور نے سن لیا، اور میں نے حضور کے چہرے کو اس طرح سرخ دیکھا جیسے آگ کا انگارہ سرخ ہوتا ہے، جلال نبی کریم کے چہرے پر۔ حضور نے فرمایا کیا باتیں کر رہے ہو، کیا باتیں؟ بول پڑے بریلی کے امام، کہنے لگے غضب سے ان کے خدا بچائے، غضب سے ان کے خدا بچائے۔ کیا باتیں کر رہے ہو، تقدیر پہ بحث کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ گفتگو کر رہے تھے۔ میرے محبوب نے فرمایا تم سے پہلی امتیں تباہی اس لیے ہوئی ہیں کہ وہ بحث کرتی تھی، اور میں خبردار، کسی نے تمہیں اجازت نہیں دی بات کرنے کی، جو میں کہتا ہوں وہ مان جایا کرو، اس لیے کہ میں اللہ کا رسول بن کے تشریف لایا ہوں۔ کس نے تمہیں اجازت دی؟ جلال فرما۔ ہر آدمی بات کر رہا ہے، ہر آدمی بحث کر رہا ہے، ہر آدمی گفتگو کر رہا ہے۔ جو ٹی وی پہ بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے فلاں کو ٹھیکیدار ہے، مجھے بھی تو اتنی باتیں آتی ہیں۔ ہر آدمی گفتگو کر رہا ہے، کس نے منع کیا ہے؟ جب تو ٹی وی پہ گیا تھا، اینکر پرسن بنا تھا، تو نے صحافت کی ڈگریاں دی تھی، پولیٹیکل سائنس میں تو نے کتنے ایم اے کیے، وہ تو نے جمع کرائی تھی۔ تو دین پہ بحث کر لا، ہمیں بھی کوئی ڈگری دکھا، تو نے کہاں سے پڑھا ہے، کوئی بات سنا، تو کس کا شاگرد ہے، کو اپنی سند ثابت کر۔ ایسے ہی بات کرنے کی اجازت کیسے دے دی جائے؟ حبیب کریم علیہ السلام نے سب سے پہلے اس بندے سے اظہار ناپسندیدگی فرمایا، جلال فرمایا، جو علم اس کے پاس نہیں ہوتا اور دین کے معاملات میں بحث کرتا ہے، تکرار کرتا ہے، باندھ علموں جو کرے فقیری وہ کافر مرے دیوانہ ہو۔ میرے رسول پاک علیہ السلام ناراض ہے۔ پھر دوسرا جلال میرے نبی پاک نے بے ادب پہ فرمایا، بے ادب پہ۔ ابو داؤد، ابن ماجہ، سیاستہ سے روایت عرض کر رہا ہوں، نبی کریم علیہ السلام بازار میں نکلے، گلی میں نکلے، ایک آدمی کو دیکھا، اس نے خانہ کعبہ کی سمت منہ کر کے تھوکا، کعبے کی طرف نہیں، کعبے کی سیدھے پیر کیے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں قرآن تو بڑا پڑھ رہا ہے نا، چلو کعبے کو پیر کیے ہیں تو پھر کیا حرج ہے؟ جی یہ کہیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ کعبے کو پیر نہیں کرنے چاہیے؟ کس حدیث میں لکھا ہے؟ آؤ میں دکھاؤں کس حدیث میں لکھا ہے۔ میرے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں، یہ سیاح کی روایت کر عرض کر رہا ہوں، کان اور آنکھیں اور دل کھول کے رکھا کرے،
यूं चले आओ ना बर्छी तान कर, अपना बेगाना जरा पहचान कर, और अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर। लिबासे खिज्र में यहाँ सैकड़ों राहजन भी फिरते हैं मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलाम ने देखा, उसने काबे की तरफ नहीं, काबे की सिमत की तरफ, क्योंकि काबा तो मक्के में है ना और बात मदीने की हो रही है, मुंह करके थूक दिया और थूक के वो शख्स चला गया। आमना के मासूम लाल ने इरशाद फरमाया, कौन है ये? हुजूर फलां मस्जिद का इमाम है। हुजूर ने फरमाया, आज के बाद नमाज ना पढ़ाए, आज के बाद नमाज न पढ़ाए। नमाज मुसल्ले पे खड़ा होने लगा तो सहाबा ने कहा, भाई पीछे हट जा, तू नहीं पढ़ा सकता। उसने कहा, वजह? कहने लगे, जिस महबूब ने को अल्लाह ने नमाज दी है उसी रसूल ने तेरी इमामत से मना फरमा दिया है। नमाज वाले नबी ने मना कर, तू नहीं पढ़ाएगा। भागा हुजूर के दरवाजे पे, या रसूलल्लाह क्या हुआ? फरमाया, तूने काबे की सिमत मुंह करके थूका है, तूने बेअदबी की है। या रसूलल्लाह मुझे मेरा ख्याल नहीं रहा। फरमाया, जो अदब का ख्याल ना रखे वो इमामत के काबिल नहीं होता, जो अदब का ख्याल ना रखे वो इमामत के, माफी मिल गई उसे माफी, लेकिन इमामत की इजाजत है। जो काबे की बेअदबी करे वो इमामत के काबिल नहीं, तो जो मदीने वाले रसूल की बेअदबी करे, जो वालिदैन मुस्तफा की बेअदबी करे, जो सहाबा और अहले बैत की बेअदबी करे, वो इमामत के काबिल। दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए, शिरक ठहरे जिसमें ताजीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। और आला हज़रत फरमाते हैं, हमारा तो अकीदा है, जो न भूला हम गरीबों को रजा, जो न भूला हम गरीबों को रजा, जिक्र उसका अपनी आदत कीजिए। बेअदब के मामले में नबी पाक ने नाराजगी का इज़हार, बात बेअदबा मकसूद नहीं हासिल ते ना दरगाहे टोई, बाज अदब दे मोहम्मद बख्शा तोड़ नहीं चढ़िया कोई, बाज अदब दे मोहम्मद बख्शा तोड़ नहीं चढ़िया। एक रवायत और अर्ज कर दो तिरमिजी से, हुजूर जनाजा पढ़ाने गए, पहले चले गए, लोग कहते हैं पता होता तो जाते क्यों? मैं कहता हूं अगर जाते ना तो मसला कैसे बताते? हुजूर पहुंच गए, जनाजा गाह तक पहुंचे, कब्रिस्तान में तिरमिजी है, मैयत के चेहरे से, भाई जो मर गया खत्म ही हो गया, उसके साथ काहे की जिद, उसके साथ क्या झगड़ा, मारी गया है। तिरमिजी है, इसके अर्ज कर रहा हूं, चेहरे से कपड़ा हटाया और मैं नहीं जनाजा पढ़ाता। अब जिसको लोग कफन गुसल दे के आए था तो मुसलमान ही ना, लेकिन मेरे महबूब का जलाल देखें, गजब से उनके खुदा बचाए। कब्रिस्तान तक आए, कपड़ा हटाया, पर मैं नहीं पढ़ाता जनाजा। सहाबा ने कहा, हुजूर पढ़ाए, नहीं पढ़ाता, हुजूर बेनमाजी था, फासिक था, क्या जुर्म था? और मैं नहीं जनाजा पढ़ाता, ये मेरे उस्माने गनी से बुग़्ज़ रखता था, ये मेरे उस्माने गनी से, उस्मान से बुग़्ज़ रखे। ये है मैयत किसी बेअदब की मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, उनके दुश्मन पे लानत खुदा की, रहम पाने के काबिल नहीं है। रसूल पाक अलैहिस्सलाम तो मर जाए, हजरत उस्मान का दुश्मन तो जनाजा नहीं पढ़ाते। तू जिंदों के साथ दोस्तियां किरे फिरता है, तू जिंदों के साथ ताल्लुक बनाए फिरता है। दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए मेरे नबी करीम। पहली बात तो हुजूर ने बहस करने वाले पे जलाल किया, दूसरी बात मेरे नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जलाल फरमाया उस शख्स पर जो शख्स बेअदबी करता है, जलाल। तीसरा जलाल फरमाया हुजूर ने, एक शख्स ने आके अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे मोहल्ले का इमाम मस्जिद लंबी नमाज पढ़ाता है, लंबी नमाज पढ़ाता है। अब देखे ना, एक और हाल भी हो सकता था, हुजूर बुलाते हैं, थपकी देते, कहते हो यार आस्ता आस्ता पढ़ाया कर, छोटी नमाज पढ़ाया कर, ये भी हो सकता था। लेकिन हदीस में जलाल है मेरे नबी का। हुजूर ने इमाम को बुलाया, फरमाया लंबी नमाज क्यों पढ़ाता है? कहा हुजूर मेरा दिल करता है। हुजूर को जलाल आया, फरमाया मैं लोगों के दिलों में दीन की मोहब्बत पैदा करता हूं, तू नफरत पैदा करता है, तू नफरत पैदा करता है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुक्म क्या है? फरमाया जब लोगों को पढ़ा तो छोटी पढ़ाया कर, और जब खुद पढ़नी हो तो जितनी मर्जी लंबी पढ़ा कर, तुम्हें इजाजत है, ये तुम्हें इजाजत। जलाल फरमाया नबी पाक ने उस इमाम पर। इमाम पर अगर जलाल है नबी नमाज पढ़ाने का, तो यहाँ तो जलसा 6 घंटे का होता है, 9 घंटे का जलसा है। ऐ उन मकामी नात खाने, ऐ उन मुल्तानी नात खाने, ऐ उन पता नहीं केड़े केड़े नात खाने, अल्लाह बेहतर जानता है, खुदा खैर करे। और फिर नात खान साहब भी स्टेज पे खड़े होते हैं,
हम तो छोटे लोग हैं तो अब बैक ही हो गए हैं, प्रोग्राम बनाया कि बाजी जाओ। मैं बच्चों से कहता हूँ ये थोड़ी ना हो सकता सारी दुनिया गलत है और हमसे ही है, जो खुद ही सजदा साहब कर लेते हैं, हम बैक हो जाते। अजीब चक्कर है। फिर उसने 6-7 रुके पकड़े हुए, कहते मैनू फरमाइश आ गई, ये भी मैंने फरमाइश पढ़नी है, ये भी। हमें फरमाइश भी कोई नहीं करता कि बेनमाजी की सजाएं तो सुना दे जरा। हमें कोई नहीं फरमाइश करता कि जिसने दाढ़ी नहीं रखी उसका जुर्म क्या है, 2 हदीसें सुनाए तो सही। हमें फरमाइश भी कोई नहीं करता। फरमाइशें भी सारी इन्हें करते हैं जो 1.25 मिनट में जन्नत में पहुंचा देते हैं। 1.25 मिनट लगता है वो सामने जन्नत है। अल्लाह ही माफ फरमाए। भाई अगर नमाज लंबी करने से अल्लाह के रसूल नाराज है, जिन्होंने जलसा इतना लंबा कर दिया हद ही हो गई है, हद हो गई। और सब आशिक के रसूल बैठे हैं और फजर गोलमोल हो गई है, अल्लाह जाने किधर गई। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लंबी नमाज पढ़ाने वाले इमाम, लंबी नमाज पढ़ाने वाले इमाम पर जल, और इतना सख्त जलाल फरमाया, इतना सख्त। और एक और जगह पे हुजूर ने फरमाया लानती है वो इमाम, मलून। अपनी इस्लाह के लिए बात कर रहा हूं। मलून है वो इमाम जो लोगों को नमाज पढ़ाता है पर उसके नमाजी उससे राजी नहीं होते। राजी क्या मतलब कि जबरदस्ती मुसल्लत हुआ है, जबरदस्ती मुसल्लत हुआ है, वो नहीं चाहते उसके पीछे नमाज पढ़ना। हाँ, अगर कोई जाती नाद की वजह से ऐसा करता है तो वो इस हदीस के जुमरे में जाती नाद है उसको, कि मैं आख्या सी मेरे अब्बा जी की कब्र ते 3 कुरान कट्ठे पढ़ने नहीं तो मौलवी आया नहीं बच्चे लेके। ये जाती नाद, ये जाती नाद है। इस मसले में नहीं, कोई शरई कबाहत हो ऐसी या बद इखलाकी हो या कोई ऐसा माम। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उस शख्स पर नाराजगी का, 30वें नंबर पर उस इमाम पर नाराजगी का इजहार फरमाया जो लोगों को नमाज पढ़ाए और लोग उसकी इमामत से राजी ना हो, लंबी नमाजें पढ़ाए। महबूब करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज है। नंबर 4, महबूब पाक उस शख्स से नाराज होते हैं जो गलत बात करता है, जो अपनी चलाकी के तौर पे ना चले। हुजूर के पास मुकदमा आया, तिरमिजी में मौजूद है। 2 आदमियों का मुकदमा था, एक ने कहा जी मेरी है जमीन, दूसरे भाई ने कहा मेरी है। नबी पाक ने फरमाया हो सकता है तुम चरब जुबानी दिखाओ और फैसला अपने हक में किसी से करा लो, आज तो फैसला करा लोगे तो कयामत के दिन क्या करोगे। आंखों में आंसू आ गए, दोनों दस्तबरदार हो गए। कुछ लोग अपनी तेजी दिखाते हैं, तेजी फन का मुजाहरा करते हैं, बढ़ बढ़ के बोलते हैं, कहते हैं सामने वाला तो बेवकूफ हमारे हथे आ गया, वो मैं भी जैसे कहता हूं वैसे ही कर लेते हैं। आज भी मैं गया था, चक्कर दे आया हूं, 2-4 मुंह पे तारीफें की हैं, वापस आके मैंने गीबत शुरू कर दी। हजरत इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो आदमी लोगों की तारीफें मुंह पे करे, पीछे गीबत करे, अल्लाह लोगों के दिलों से उसकी मोहब्बत खींच डालता है। वो जितना मर्जी अपने आप को तेज बना के लोगों के सामने पेश करे, मुमकिन नहीं। हम लोग ना फटाफट बात कर देते हैं, कहते हैं महफिल में मैं ही था और तो मैंने किसी को बोलने ही नहीं दिया, ताकत ही नहीं थी। सुने मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम को कितना जलाल आता है, हुजूर कितने नाराज होते हैं ऐसे लोगों से। हजरत जुबैर बिन अवाम नबी करीम अलैहिस्सलाम के फूफी ज़ात भाई हैं, हजरत सफिया हुजूर की फूफी हैं, उनके बेटे हैं, अशरा मुबशरा सहाबा में से। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के वालिद हैं, हजरत अस्मा बिनत अबी बकर सिद्दीक जो गारे सौर में रोटी पहुंचाती थी, हजरत आयशा सिद्दीका की बड़ी बहन, उनके शौहर है हजरत जुबैर बिन अवाम। और हुजूर ने फरमाया सबका कोई ना कोई तन्हाई का दोस्त होता है, जब दिल करता है कि फलाना आए तो मैं अकेले में उसके पास बैठूं। फरमाया जब मेरा किसी के पास अकेले बैठने को दिल करे तो मैं जुबैर को बुलाया करता हूं। इतनी मोहब्बत है नबी करीम अलैहिस्सलाम को हजरत जुबैर बिन अवाम के साथ। इनका एक पड़ोसी था, उस पड़ोसी के साथ इनकी बहस हो गई। जौहर था जो हजरत जुबैर बिन, शारहीन ने लिखा है हजरत जुबैर बिन अवाम के खेत में जौहर था, तालाब था पानी का, उस तालाब से लोग पानी लगाते थे खेतों को, था उनकी मलकियत। पहले हजरत जुबैर बिन अवाम के खेत थे, उससे आगे उस आदमी के खेत थे। अब वो आदमी कहने लगा हजरत जुबैर से कि पानी पहले मैंने लगाना है। आपने फरमाया एक तो पानी मेरा है और दूसरा पहले खेत भी मेरा है, जब मेरे खेत पानी पी लेंगे सैर हो जाएंगे तो मैं खोल दूंगा, तेरी तरफ आ जाएगा। उसने बहस की, झगड़ा किया। एक तो उसका मुकदमा नाजायज है, फिर वो झगड़ा लेके आदर रसूल पे गए। नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुरव्वत फरमाते थे, हुजूर ख्याल करते थे। हुजूर का तरीका मुबारका था जितना किसी का भला हो सके किसी से उतना करा दिया करते, जितना किसी करने वाले को तकलीफ ना उतना भला। ऐसा होता है, मुरव्वत का मुजाहरा करे लोग बिगड़ जाते हैं। आप किसी से प्यार करके तावन करते हैं, सामने वाला लालच शुरू कर देता है, वो कहता है कल भी देना है तूने, अब तूने परसों भी देना है, अब फलां दिन भी देना, पीछे पड़ जाता है। मुरव्वत का लोग गालिब ने कहा था
मोहब्बत को जालिमों ने इबादत दिया करार। इन्होंने अजीब रंग इख्तियार कर लिया है। अब जब वो मुकदमा हुजूर की बारगाह में आया ना, बात की समझ तो आ रही है ना अब हज़रात, जब मुकदमा आया ना नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो हुजूर ने बात सुनी तो नबी पाक समझ गए कि ज़ुबैर इस मामले में ठीक है, उनकी राय, उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है। आपने उस शख्स से कहा, हजरत ज़ुबैर से फरमाया यार जब तेरे खेत पानी पी लेना तो फिर तूने पानी का क्या करना है, खोल दिया कर, इसके खेतों को भी लग जाए। ठीक है पहले तू ही पिला अपने खेतों को, लेकिन बाद में खोल दिया कर। उस शख्स ने ना फटाफट एक बात की, हुजूर की नरमी को देखा ना, मोहब्बत को देखा, प्यार को देखा, वफाशियारी को देखा कि हुजूर तो जो भी आता है मीठा ही बोलते हैं, जो भी आता है हुजूर प्यार ही करते हैं। पता क्या कहा उसने, कहने लगा ज़ुबैर आपकी फुप्पो के बेटे हैं ना, माज़अल्लाह आपके फुफ्फी दाद है ना, इसलिए आपने हिमायत की है। फुफ्फी दाद है, मैं रिश्तेदार नहीं ना आपका। मेरे रसूल पाक ने यूं नजर उठाई, हजरत ज़ुबैर फरमाते हैं मुझे यूं लगा कि तारे गिरने लगे हैं, मुझे यूं लगा कि जमीन फट जाएगी, मुझे यूं लगा कि अभी ज़लज़ले आएंगे, मुझे लगा कयामत से पहले कयामत आए। हुजूर ने फरमाया तुझे तेरी मार होए, मैं तेरे साथ मुरब्बत करता हूं और तू क्या बोलता है। फरमाया अगर धरती पे मैं अदल नहीं करूंगा तो बता फिर दूसरा करेगा कौन, अगर मैं इंसाफ नहीं करूंगा तो कौन करेगा। इस तरह की बात करता है तू। जब हुजूर ने जलाल फरमाया तो कदमों से लग गया, हुजूर गलती हो गई। हजरत ज़ुबैर फरमाते कुर्बान जाऊं महबूबा तेरी शान पे, अभी जलाल के दारे बह रहे थे जलाल के दरिया, और जरा वो कदमों से लगा तो आमना के मासूम लाल ने उठा के सीने से लगा लिया। फरमाया मैं समझाता हूं और तुम क्या करते हो जवाब में। जब कोई गलत बात करता हम पता क्या करते हैं, हम झूठ बोलते हैं, गलतियां करते हैं। अगर हमारे बेटे में गलती हो तो मानने को तैयार नहीं, बड़ी पंचायत में हम कहते हैं ये तो दूध का धुला हुआ है, ये खता कर ही नहीं सकता माज़अल्लाह। अगर बेटी हमारी हो और उसके ससुराल से कोई पैगाम आ जाए तो सवाल है हम मान जाए। झूठ बोलते हैं, गलत हत्ता के जातियात पर उतर कर लोग इल्जाम तराशी करते हैं, निजी जिंदगी पर लोग इतराज करते हैं, नीचे उतर आते हैं, गिर कर बात करते हैं। और मेरे भाई, मेरे नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जलाल किया उस शख्स पर, इज़हारे नाराजगी फरमाया उस शख्स पर जो गलत बात करता है, जो गलत जगह पर गुफ्तगू करता है, उस पर जलाल फरमाया। महबूब करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें समझना चाहिए कि ऐसे लोगों से हुजूर नाराज होते हैं जो जलाल करता है, जो गलत बात करता है। मेरे हबीब पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदूदुल्लाह के मामले में आपने बात कान खोल के सुननी और खास तवज्जो करनी है मेरी बात पर। एक मामला है हुदूदुल्लाह का। अल्लाह के महबूब ना बाइख्तियार है। कुरान कहता है युहल्ली लहुमुत तय्यबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। महबूब अगर चाहें तो कुछ चीज़ें हलाल कर दें और चाहें तो गंदी चीज़ें हराम कर दें, बाइख्तियार है। और उस इख्तियार को हुजूर सैयद आलम ने इस्तेमाल भी फरमाया। युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस को हुजूर ने इख्तियार भी फरमाया। एक सहाबी आए, बुखारी में मौजूद है, ने आके अर्ज की हुजूर रोज़ा टूट गया है, रखा था या रसूलल्लाह मैं निभा नहीं सका, टूट गया है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जा 3 रोज़े कफ़ारे में रख। उसने कहा उधर एक नहीं पूरा हो सका मुझसे। नबी पाक ने फरमाया जा 60 मिस्कीनों को खाना खिला। उसने कहा हुजूर कई दिनों से खुद नहीं पेट भर के खाया। अब मेरे पास कोई आता 2 बातें पूछता, तीसरी मैं कहता यार हाली कोई नहीं, तू अजीब बात कर रहा है, मैं तो नाकेल हूं, इधर से बात पढ़ी और इधर बयान कर दी, मैं कुछ शारे थोड़ा हूं माज़अल्लाह ताला। नबी करीम बाइख्तियार है, शारे है दीन के मामले में, तशरीह करते हैं नबी करीम सैयद आलम अलैहिस्सलाम दीन। व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। हुजूर अगर चाहे तो किसी बुरी चीज को हराम कर दे, चाहे तो किसी अच्छी चीज को हलाल कर दे, अल्लाह ने इख्तियार दिया है। कहने लगा यार रसूलल्लाह मैं नहीं रख सकता। फरमाया चल इस तरह का 60 मिस्कीनों को हुजूर नहीं खिला सकता। फरमाया चल 3 को खिला दे। कहने लगा हुजूर सवेर से मैंने खुद कोई नहीं खाया, मेरे बच्चों ने कोई नहीं खाया। थोड़ी देर गुजरी तो एक टोकरा खजूरों का आ गया। हुजूर बाइख्तियार है, टोकरा आया खजूरों का। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये खजूरें ले जा और मदीने में जो गरीब है उसको दे दे, तेरे रोजे टूटने का कफारा अदा हो जाएगा। कहने लगा यार रसूलल्लाह मदीने में सबसे गरीब मैं ही हूँ। तो हुजूर ने फरमाया रोजा तूने तोड़ा है, खजूरें मैं दे देता हूँ, जा घर जाके बच्चों के बीच बैठ के खा ले, तेरे रोजे का कफारा हो जाएगा। ये इख्तियार है मेरे नबी पाक का, ये मेरे रसूल पाक का
आला हज़रत फरमाते हैं वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब, वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में मौजूद है। एक शख्स ने कहा हुजूर मैं 2 नमाजें पढ़ूंगा, या एक रवायत में 3 पढ़ूंगा। तो हुजूर ने फरमाया तू कलमा पढ़, मैं तुझे 2 की माफी देता हूँ। वो अलग बात है कि बाद में उसने तहज्जुद भी पढ़ी, इशराक और चाश्त भी पढ़ी, लेकिन हुजूर बाइख्तियार है मेरे नबी पाक, रसूल पाक बाइख्तियार है नबी करीम अलैहिस्सलाम। लेकिन हुदूदुल्लाह का जब मामला होता, हुदूदुल्लाह का मामला, एक दफा तो ऐसा हुआ कि एक जंग के मौके पर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक औरत की लाश देखी तो हुजूर ने जलाल फरमाया जब मैंने तुम्हें कहा था कि औरतों पर हाथ नहीं उठाना तो किसने कत्ल किया? जलाल फरमाया क़यामत के दिन ये बीबी जिस आदमी का भी गिरेबान पकड़ेगी मैं इसके साथ हो के अल्लाह की बारगाह में मुकदमा लड़ूंगा, अगरचे वो काफिरों की औरत थी। आज तो मुसलमान इक़्तिदार के लिए काट रहे हैं ना एक दूसरे, इक़्तिदार की जंग, दुनिया में जंग लगी हुई है ना, शाम से लेकर इराक तक। तो लोग कह देते हैं फिरकों की जंग है, मैं दर्जनों बार कहता हूँ ये इक़्तिदार की लड़ाई है। लोग किसी ने कोई मजहब का रूप धारा है, कोई धारा है, असल जंग इक़्तिदार की है। सबको इक़्तिदार चाहिए और इक़्तिदार के लिए भाग दौड़ हो रही है। 4 लाख के करीब हलब के लोग कत्ल हो चुके हैं और अभी तक खून से उस जमीन को रोज रंगीन किया जाता है, लेकिन लोग बाजी नहीं आते। अल्लाह के नबी जलाल फरमाया करते, हत्ता कि कोई दरख्त काट देता नाजायज किसी का तो हुजूर उस पर भी नाराज होते और यहाँ गर्दनें काटी जाती हैं। बहरहाल हुदूदुल्लाह के मामले में नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल फरमाते, बाइख्तियार है, चाहते तो किसी चीज की तब्दीली कर देते। और जो सिफारिश करने आए वो भी हजरत उसामा बिन ज़ैद है। एक हद के उसामा बिन ज़ैद कौन है? इतने महबूब है मेरे नबी पाक को कि जब मक्का फतह हुआ तो हुजूर ने इमाम हसन और हुसैन को घोड़े की पुश्त पे बिठाया और उसामा बिन ज़ैद को गोद में बिठाया। जब माल गनीमत तकसीम होता था तो हजरत उमर फारूक जनाब उसामा बिन ज़ैद को 500 दिनार ज्यादा देते थे। लोग कहते क्यों देते हो? पर मैं इसलिए कि नबी पाक इससे बड़ा प्यार करते थे। जिस दिन महबूब का विशाल हुआ जनाब उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुसलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ लश्कर का सिपा सालार बना के नबी पाक ने भेजा। वो सिपा सालार थे हजरत उमर फारूक और मौला अली जैसे लोग उसमें बतौर सिपाही शामिल थे। गुलाम के बेटे से इतना प्यार। और इस धरती ने वो नजारा भी देखा जब हुजूर हज के मौके पर अरफात से मुज़दलिफा के लिए निकले तो हुजूर ने फरमाया ठहर जाओ, एक बंदा रह गया है, वो आएगा तो मुज़दलिफा जाएंगे। तो कुछ नौ मुस्लिम सहाबा थे, वो कहने लगे हमने सोचा किसी कबीले के सरदार की बात हो रही है, लेकिन थोड़ी देर गुजरी तो काले रंग और मोटी नाक वाले उसामा बिन ज़ैद आ गए। मेरे महबूब ने फरमाया ये मेरा गुलाम ज़्यादा है, पीछे रह गया, जब तक ये ना आता काफिला ना चलता। एक तरफ मोहब्बत का ये हाल और दूसरी जानब फतह मक्का के मौके पर कुरैश की एक बीबी ने चोरी कर ली। मुकदमा दायर हुआ, तफ्तीश के बाद जुर्म साबित हो गया। नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसका हाथ काटा जाएगा। वो लोग हजरत उसामा बिन ज़ैद के पास आए और बड़ी हिकमतें बयान की, बड़े दलाइल दिए, बहुत सारी बातें समझाई। कहने लगे अभी नया नया कलमा पड़ा है, जरा दीन में आ जाएंगे, थोड़े से समझ जाएंगे, फिर हद कायम होगी तो भागेंगे नहीं। जरा उन्हें आ लेने दो, समझ लेने दो। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहिए थोड़ी सी हुजूर रियायत कर दें, जरा करीब आएंगे तो हद जारी हो जाएगी। हजरत उसामा बिन ज़ैद तैयार हो गए। उन्हें पता था कि हुजूर मेरी बात कभी लौटाया नहीं करते। जनाब उसामा कहते हैं मैं हुजूर के करीब आके बैठा और मैंने बैठा ना जब हुजूर के पास तो बात कोई नहीं की। सरकार ने रुख फेरा, कैसे आए हो? अर्ज किया या रसूल अल्लाह। सब कहिएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने अर्ज की हुजूर एक छोटी सी बात करनी थी। तो हुजूर ने फरमाया करो। या रसूल अल्लाह बात जरा मुश्किल है। फरमाया तू कर तो सही। हुजूर वो छोटी सी सिफारिश फरमाया बोल बात कर उसामा, तेरी बात कौन लौटाता है? जनाब उसामा बिन ज़ैद कहते हैं मैंने कहा हुजूर वो कुरैश की बीबी जिस पर चोरी साबित हो गई है, अगर उसे थोड़ी रियायत मिल जाए तो उसका काफिला नया नया आया है, कबीला नया नया इस्लाम कबूल किया, हुजूर थोड़ी रियायत मिल जाए तो चलो पुख्तगी के बाद जैसे आप चाहेंगे। मेरे महबूब ने रुख फेरा तो जनाब उसामा बिन ज़ैद कहते हैं मेरा वजूद थर थर कांपने लगा, बस गजब से उनके खुदा बचाए। फरमाते हैं मैं कांपने लगा। नबी पाक ने फरमाया उसामा
मुझे तू बड़ा प्यारा है, बड़ा अजीज है, पर मैं रब करीम के हुदूद के मामले में किसी की परवाह नहीं करता। जहां अल-तिल का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदें हैं, इस मामले में मैं किसी शख्स की रियायत नहीं करता। फरमाया तुमसे पहली दिए जाते थे। और मैं खबरदार, तुमने जुर्रत कैसे की इस मामले में सिफारिश करने की। उसामा कहते मैं हाँफता कांपता लरसता मस्जिद से चला गया। सुबह की बात थी, जुमे का खुतबा शुरू हुआ। मदीने वाले महबूब मिंबर पे बैठे। जनाब उसामा फरमाते हैं मेरा वजूद थर थर कांप रहा था। मेरे महबूब के जुमले, हुजूर ने बात कहां से शुरू की। फरमाते हम सब जानते थे कि नबी पाक को सबसे ज्यादा मोहब्बत हजरत जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा के साथ है, सबसे ज्यादा प्यार उनसे करते। इतनी दफा जनाब फातिमा आती, खड़े होकर इस्तकबाल होता और फरमाया फातिमा तो बिदअत मिन्नी, ये तो मेरे वजूद का हिस्सा है, ये तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। फरमाते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जुमले क्या इरशाद फरमाए। फरमाया लोगों को क्या हो गया, अल्लाह की हद के मामले में सिफारिश करते हैं। फरमाया मुझे कसम है अल्लाह की इज्जत की, अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसका हाथ काट डालता। फातिमा बिनते मोहम्मद को भी सजा होती। भैया लफ्ज क्या है? महबूब ने फरमाया मैं अपनी मोहब्बत पर पैर रखता, मोहब्बत कुचल डालता, लेकिन अल्लाह के दीन को नाफिज करता। मैं फातिमा के साथ, बात को समझ रहे हैं आप हज़रात? मेरा जुमला आपने समझा नहीं। फरमाया मैं अपनी मोहब्बत को कुचल डालता, अपनी मोहब्बत को, बोलिए, अपनी मोहब्बत को गोया कुचल डालता, और अल्लाह के दीन को, मैं दीन के मामले में किसी की रियायत, यहाँ तो पीर साहब कहते हैं तबलीग की तो बिगड़ जाएंगे, इनको कह दिया दीन पे अमल करो तो ये आएंगे नहीं। कहते मैं तेन ख्वाब देखी सी राती, तो मैनू नजर आया सा बाबा फरीद साहब भी तेन याद कर रहे थे मेरी ख्वाब में। उसको चढ़ाया जाता है, बढ़ाया जाता है, लेकिन उसको डांटा नहीं जाता शरी मामला में। कहते हैं हमारा ख्याल रखता है ना, इतना ही काफी, दीन का रखे चाहे ना रखे। मेरे अजीज, मेरे नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुदूदुल्लाह के मामले में सख्त हुक्म दिया। यहाँ लोग कहते हैं मेरा पुत्र नहीं मानता, वो कहता है सारी रात नाच गाना करना है, नहीं दी मुंडा नहीं मानता। मोहब्बत देखनी है कि दीन देखना है? ना बोलो, लेकिन बात तो सच्ची है ना, बोले ना बेशक आप हज़रात, लेकिन बात तो सच, मोहब्बत देखनी है कि दीन? चलो जिन्हें बोलो इन्हें तो देखोगे ना इंशाअल्लाह ताला, बाकी भी उन्हें देख के ही सही इंशाअल्लाह ताला। बेटे की बात माननी चाहिए कि नबी पाक की? बाप की बात माननी है कि नबी पाक की? भाई की बात माननी है कि नबी पाक की? कहते जी वो फलां नहीं मानता, क्या मतलब है तेरा? मेरे नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसामा तुझसे तो बड़ा प्यार है ना, लेकिन फातिमा से मुझे सबसे ज्यादा प्यार है। अगर फातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करती तो मैं प्यार ना देखता, मैं रब का दीन देखता, मैं हुदूदुल्लाह नाफिज करता। हुदूदुल्लाह नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलाल आता था जब कोई अल्लाह की हद तोड़ता था। नबी रहमत अलैहि, असल बात क्या थी? बड़ी मेहनत से हुजूर ने दीन सजाया, बड़ी मेहनत से। हम लोग कहते हैं ना मेरा खून पसीना शामिल है, और मेरे भाई इस दीन की बुनियादों में मेरे रसूल का खून पसीना शामिल है। सहाबा कहते हैं जब मस्जिद नबी बनाई तो हुजूर जब ईंटें उठाते थे तो पसीना बह के ईंटों पे गिरता था, इसीलिए तो आज तक वहां से खुशबू आती है, इसलिए तो आज तक वहां से खुशबू आती है। हुजूर का पसीना गिरता था। और ओहद में मेरे रसूल पाक ने यूं अपने खून को अपने हाथों पे रख लिया और कहा अल्लाह तू देख रहा है ना, ये मुझे जानते नहीं, इन्हें हिदायत का नूर अता फरमा। और मेरे भाई खून पसीना हुजूर ने दीन सैंचा सवारा, अपनी औलाद की कुर्बानी दी। जिस मकान को तूने अपने हाथ से टाइलें लगाई हो, तेरा अपना बेटा भी वो टाइल तोड़ दे, तू थप्पड़ मारता है। वो तुझे पता नहीं मैंने परदेश काट काट के बनाया है और तू तोड़ रहा है। मामूली समझते हो दीन की धज्जियां बखेरना?
जब तू दीन की नाफरमानी करता है तो मदीने वाले रसूल का दिल दुख जाता है। गोया हुजूर फरमाते हैं क्या कर रहे हो, मैंने बड़ी मुशक्कत से तुम्हें दीन दिया है, मैंने खून पसीना लगा के तुम तक पहुंचाया था, तुमने एक रात में उड़ा के रख दिया, तुमने चंद मिनटों में तबाही लगा दी सारे दीन की, सारी शरीयत की धज्जियां बखेर दी। और मेरे भाई, मेरे हबीब करीम सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल करते इसलिए कि मोहब्बत से दीन सैंचा था, सवारा था। ख्याल करें, गौर करें, मेरे महबूब करीम महबूब पाक अलैहिस्सलाम किन बातों में जलाल फरमाते, उम्मतियों से नाराज हो जाते। हजरत उमर की शान से तो कोई इनकार नहीं ना कर सकता। मेरे महबूब ने खुद फरमाया है, फरमाया मेरा उमर जिस गली से गुजरे शैतान रास्ता ही बदल जाता है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम की एक हदीस यूं भी है, फरमाया जब तक उमर दुनिया में रहेगा जहन्नम को ताला लगा रहेगा, ये लोगों को गुनाह ही नहीं करने देगा तो लोग दोज़ख में जाएंगे कैसे, ये ताला लगा देगा दोज़ख को। इतना अजीम शख्स जनाब उमर कहते हैं मुझसे भी हुजूर एक दिन नाराज हो, गजब से उनके खुदा बचाए, गजब से उनके खुदा बचाए, जलाल बारी इताब में मुझसे भी नाराज हो गए और गिरा जो निगाह से उनकी वो संभल नहीं सकता। हजरत उमर फरमाते कई महीनों हुजूर के उन जुमलों की उस नाराजगी की टीसें मेरे सीने में उठती रहीं, और आज भी जब ख्याल आता है तो मैं अल्लाह की बारगाह में सजदे में गिर जाता हूँ कि अल्लाह वो मेरी बड़ी खता थी। सुनो, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु से लोगों ने कहा उमर हुआ क्या, तो फरमाने लगे मुझे पता चला कि तौरात, इंजील और ज़बूर भी अल्लाह की किताबें हैं, तो मैं कहीं से तौरात उठा लाया और मस्जिद नबी में मैंने बैठ के पढ़नी शुरू कर दी। फरमाने लगे मदीने के महबूब तशरीफ लाए, हुजूर ने मेरी तरफ देखा और हुजूर तौरात को भांप गए, देख गए कि तौरात है। नबी पाक ने फरमाया क्या पढ़ रहे हो, अर्ज की हुजूर तौरात पढ़ रहा हूं। तो फरमाते हजरत उमर ये लफ्ज मेरे मुंह से निकले तो मैंने हुजूर के चेहरे का रंग बदलते देखा, बस गजब से उनके खुदा बचा, मैंने रंग बदलते देखा, चेहरा अनवर पे जलाल देखा। और हुजूर ने फरमाया उमर जो दीन मैंने तुम्हें दिया है वो मुकम्मल नहीं, जो पैगाम मैंने तुम तक पहुंचाया है वो कामिल नहीं, जो शरीयत मैं लेके आया वो अकमल ने एक दर पढ़िए, एक नु मनिए, एक दई हो के मरिए। फरमाया वो मुकम्मल और कामिल नहीं, कामिल नहीं। हज़रत उमर कहते यार सुनना क्या हुआ, फरमाया तू तौरात पढ़ रहा है। और फिर हुजूर ने अगले लफ्ज अदा फरमाए, फरमाया कसम मुझे अल्लाह की इज्जत की, अगर आज मूसा हयात ज़ाहिरी में होते, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अगर आज हयात ज़ाहिरी में होते तो फरमाया वो मेरा कलमा पढ़ के मेरी शरीयत की पैरवी करते। तुम तो रात पढ़ रहे हो, तुम लोगों के पीछे जा रहे हो। फरमाया मैं अपनी मोहब्बत के मामले में किसी की शराकत पसंद, आप लफ्जों पे गौर करें ना, जब मिशकात में हुजूर आए हैं तो एक सहाबी कह रहे थे हजरत मूसा कलीमुल्लाह है, दूसरे कह रहे थे जनाब ईसा रूहुल्लाह है, तीसरे कह रहे थे इब्राहिम खलीलुल्लाह है। हुजूर ने क्या फरमाया जरा अंदाज देखिए ना, एक नु मनिए, एक दर फड़िए ते एक दई हो के मरिए। मोहब्बत में शराकतदारी काबिल कबूल है, ये कैसे हो सकता है मेरे सामने को किसी और का नाम ले जाए, ये मुमकिन है? वही नहीं, मियां शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह रियाकारी पे बात कर रहे थे, दिखावा ना करो, दिखावा ना करो, किसी और को अल्लाह की इबादत में शामिल ना करो। उनका एक बेली कहने लगा मियां साहब समझ नहीं भी लगती कि रब करीम को क्यों इतना नापसंद है, कोई और भी देख ले, क्यों इतना नापसंद है। तो बंदा सादा था, उसको कुरान मजीद की आयात की और अहादीस के दलाइल की समझ नहीं आ रही थी, ज्यादा ही कमजोर था, ज्यादा ही सादा था, देहाती था। तो मियां साहब कहने लगे और नहीं अल्लाह की इबादत में किसी और, कहने लगा बड़ा हौसला होता है बंदों का, बंदे दो तीन लोगों को बढ़ता, अल्लाह क्यों, रियाकारी क्या मतलब। तो मियां साहब ने उसको समझाने के लिए मिसाल दी, समझाने के लिए, बिला मिसालो बिला तशबीह, सिर्फ समझाने के लिए। मियां साहब फरमाने लगे आज घर जाना और अपनी बीवी से कहना तेरे सामने किसी गैर का नाम ले। कहने लगा हुजूर ओदी मैं जुबान ना कट देंगा,